آج ہم بلیس کریں، نہ کہ صرف جو ہم ورڈ آف شیئر ویری شارٹلی میں شیئر کروں گی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے بزرگوں کو بھی، اور اپنے ملک کو بھی، اور اپنے کھانے پینے کو، ہر چیز کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ Heavenly Holy Father, I lift up my hands to you in the name of Yeshua HaMashiach۔ جو آسمان تو کھول دیتا ہے خداوند جب تیرا نام لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تھینک یو ابا فادر، تھینک یو ہولی اسپرٹ لارڈ، تیرا شکر ہو، تیری بڑائی ہو خداوند، تیرے نام کی عزت اور تمجید ہو خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، بڑا پیارا دن ہے خداوند، تو ہمیں حفاظت سے رکھنا، جو ٹریول کر رہے ہیں، سڑک پہ ہیں، روڈ پہ ہیں، ایئر میں ہیں، سی میں ہیں، کہیں بھی ٹریول کر رہے ہیں، سب کو پروٹیکٹ کرنا خداوند۔ اگر جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو سنا جا رہا ہے، whether they're traveling on the ship, I pray Father this word will be blessed richly for their soul, spirit and mind in Jesus name۔ اور خداوند تو ہمیں بہت ساری برکتیں دے رہا ہے اور دینے والا ہے خداوند، اس کے لیے بھی ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اور جو خداوند اس وقت بیمار ہیں ان کو خداوند تو تسلی دے، اگر وہ بیڈ میں بیمار ہیں اور اس پیغام کو سن رہے ہیں خداوند تو انہیں اٹھا کھڑا کر، یشوع اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو اور انہیں شفا دے، خداوند کے نام کو جلال ملے اور عزت ملے۔ تھینک یو ابا فادر، اس خداوند دعا کو آپ نے سنا اور قبول کیا اور راہ بنایا ہے، جن کے لیے راہ بند تھے برکت کا راہ بنایا ہے آپ نے یسوع کے نام میں۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ تھینک یو لارڈ جیسس، تھینک یو۔ ویل لیٹس کوئکلی شیئر دا ورڈ بیفور وی لوٹن کو لنڈن سے جاتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور ٹریفک بھی کافی اسٹڈی اینڈ سلو نظر آ رہی ہے، تو تب تک ہم بات چیت کر لیتے ہیں خدا کے کلام سے۔ There are many ways we can deepen our relationship with God۔ بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنا رشتہ گہرا کر سکتے ہیں۔ پنجابی چ کہاں کیوں آپ اپنا رشتہ گوڑا کر سکتے ہیں، ڈیپ کر سکتے ہیں، انہوں قریب تو جان سکتے ہیں، اسی اپنا رشتہ we're talking God has already come down through the through Lord Jesus Christ کے ذریعے خداوند تو آ چکے ہیں، لیکن ہم نے خداوند سے کیسے ملنا ہے، ہم نے اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ کیسے قائم اور دائم کرنا اور اسے گہرا کرنا ہے۔ تو یہ بات میں کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ۔ کئی طریقے ہیں جیسے میں نے کہا، لیکن اگر 3 4 5 بھی ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا رشتہ بہت گہرا خداوند کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے نمبر 1 ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے ہاؤ کین آئی بی ڈیپ ان مائی ریلیشن شپ، کیونکہ میں جب پریئر پروگرامس لائیو جب میں کرسچن ٹیلی ویژن ریولیشن ٹی وی پہ کرتی ہوں تو مجھے بہت بار یہ سوال آتا ہے کہ سسٹر پیم ہاؤ کین وی بی مور اسپرچل ان آر لائف۔ جب اسپرچل وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں بہت سارا خوف ہے، ان کے دل میں بہت سارا ڈر ہے، دنیا کا بھی اور خدا کا بھی، دونوں طرف سے وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ کیا وہ خدا کو فیتھفلی سرو کر رہے ہیں، یا خدا کو ایکنالج کر رہے ہیں، یا کیا وہ وفادار ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی ریلیشن شپ میں جو دنیا میں ہے اس میں بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں، کیا میں یا زیادتی تو نہیں کر رہا یا کر رہی، یا میں بالکل بیلنس میں چل رہا ہوں۔ تو یہ بیلنس میں زندگی رکھنے کے لیے بہت اچھا آج کی یہ بات ہے، اگر آپ اسے پلے باندھ لیں گے۔ نمبر 1 give your heart to the Lord۔ سب سے پہلے اپنا دل خداوند کو دو۔ کیا لکھا ہے کہ give your heart، this is number 1 step ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ بے شک آپ نے کتنا بھی بائبل پڑھا ہو، کتنی بھی بار آپ نے معافی مانگی ہو، جتنی بھی بار آپ نے غیر زبانیں بولی ہوں، لیکن اگر ہم نے دل اپنا پورا خداوند کو نہیں دیا تو ابلیس کا اس میں پارٹنرشپ ضرور ہے۔ Don't be fooled by people جو بہت خوبصورت کلام سناتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں گناہ پڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کا بھی تھوڑا سا پورشن پڑا ہوا ہے۔ تو خدا کا روح جب آئے گا تو اویئرنیس دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس چیز میں کمزوری ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ سب سے پہلے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ کسی کو شاؤٹ کیا ہے، اسکریم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو نفرت دکھائی ہے، کسی کے پیٹ پیچھے اس کے آپ نے غلط باتیں کی ہیں، آپ نے امیجنیشن آپ کی لگتی ایسی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو آپ نے اپنا 100% دل نہیں دیا۔ کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ میں ابھی آپ کو سارے تو نہیں اسکرپچرز دوں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا جس دل میں رہتا ہے سب سے پہلے اس دل میں پاپ نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی اس میں نرمی ہوگی، اس میں دیا اور رحم دوسروں کے لیے ہوگا، پیار ہوگا، اس کے لیے آپ کے پاس ابنڈنس لو ہوگا،
क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह के रूह का किरदार है। दिस इज हिज कैरेक्टर। यानी कि उस दिल ते इन्नी किरपा हो जाती है कि वो दिल विच ना कोई छाल रहिंदा है, ना कोई गुस्सा रहिंदा है, ना कोई बदले की भावना रहिंदी है, ना ही उन्होंने कोई यानी कि उन्होंने कोई किसी को बेइज्जत करन दी कोई दिल विच गल आंदी, बल्कि कहता है खुदावंद कहता है कि उसके दिल विच इन्नी मुहब्बत आ जाती कि बहुत सारे गुनाहों नूं ढक लैंदा है। आमीन। सो नंबर 1, अपना दिल अपने खुदावंद को देना है, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये बाइबल का एक सिर्फ होली बाइबल है जो हमें बताता है कि खुदा हमारा दिल चाहता है। बहुत सारे मज़हब है जो कहते हैं ये करो तो खुदावंद आपको पसंद करेगा, ये करो, अच्छे काम करो, ऑफरिंग्स दो, ये करो और वो करो, इतने बजे उठो और इतने बजे सो, इतने कदम चलो और इतने बार बैठो और उठो। उसमें नहीं, खुदावंद सिर्फ होली बाइबल में कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ होंठों से कबूल करना है, इकरार कन्फेस करना है और दिल में बिलीव करना है यीशु ने जो काम क्रॉस पे किया, हाउ जीसस डाइड ऑन द क्रॉस टू गिव लाइफ टू यू एंड आई। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं कन्फेशन। तो सबसे पहले दिल खुदावंद को देना है, गुनाहों की माफ़ी लेनी है। फिर नंबर 2 आपने क्या करना है? इसके बाद जब आप अपना दिल दे चुके होंगे ना, तो फिर आपने बाइबल उठाना है, बाइबल को पढ़ना शुरू करना है। शायद आपको न्यू टेस्टमेंट से इतना नहीं समझ आए, आपने ओल्ड टेस्टमेंट से इतना समझ ना आए, तो न्यू टेस्टमेंट से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। और इसके साथ आप जीसस फिल्म अपने फ़ोन पे जाकर, किसी भी किस्म का फ़ोन है आपके पास, तो उसमें आप गूगल करेंगे, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और लिखेंगे जीसस फिल्म वट एवर लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, यू नेम इट, गुजराती, तमिल, जो भी जितनी लैंग्वेज है, जिस किसी लैंग्वेज में भी आप देखना चाहते हैं, जैसे जैसे आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ेंगे, इससे पहले आप जीसस की फिल्म को देख सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपने सफ़र शुरू किया है, जो अपने ज़िंदगी का जो फैसला लिया है और उसमें अपना दिल खुदावंद को दे दिया है, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। द मोमेंट आई से दैट आई सॉ ब्यूटीफुल डव जस्ट फ्लाई बाय पास, आई कांट सी नाउ, एकदम वाइट, एकदम बर्ड आगे से गुजर के गया। एंड there's so much confirmation in the word of God, जो खुदा का रूह इतना यानी कि मुलायम है, इतना वो लवली एंड लाइवली है, इतना जेंटल है कि गॉस्पेल को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। गॉस्पेल बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए अपना दिल दे दें। फिर दूसरी बात जो है कि खुदावंद को अब चार्ज दे दें अपनी ज़िंदगी का, अपने हर प्लान का। इसका मतलब सुबह, दोपहर, शाम दुआ में ठहर जाएं। क्या करना आपने? खुदावंद को दिल दे दिया, अब खुदावंद को कहना कि तू मेरी मदद कर कि मैं कैसे तुझे और जानूं और तेरे कैसे करीब आऊं और कैसे मेरी रिलेशनशिप और तेरे साथ मजबूत हो जाए, डीप हो जाए। सो अब आपने खुदा पे भरोसा किया है, दिल दिया है, अब खुदा को चार्ज देना है। अब अपनी मर्जी से नहीं सारे काम करने, और फिर जब गलत हो जाए तो कहना मुझे माफ़ कर दे खुदावंद, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई ही ये सीखने वाली बात है। ये खुदावंद माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसा बच्चा हो कि वो बार बार गलतियां जानबूझ के करता जाए और फिर माफ़िया मांगता जाए। खुदा उस पर्सन के साथ डीप नहीं हो सकता, उस पर्सन पे भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि विशी वशी है, 50-50 है, क्योंकि वो मन मर्जी करता है। और दिल जो है हिलेबाज है, वो किसी तरफ भी चाहे वो मोड़ लेता है। फिर दुख आते हैं, आंसू आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दूसरों का गुस्सा आपके ऊपर, यानी कि दूसरों को आपके ऊपर गुस्सा आता है, आपकी दोस्ती ख़राब होती है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है। सो अब आपने क्या करना है? अब अपने खुदा की मर्ज़ी को मानना है। एंड लेट मी टेल यू कि पिछले 30 सालों से जिस दिन से मुझे ये तजर्बा हुआ है खुदावंद के साथ, अपना रिलेशन बनाया है, मुझे कभी भी किसी चीज़ की बोझ नहीं लगा। मैं जो लगा भी तो मैंने खुदावंद को दे दिया। हर बात के लिए खुदावंद का प्लान मांगते हैं, सुबह उठ के दुआ करते हैं, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, हालेलुया। तो ये नंबर 2 आपने क्या करना है? खुदा को फुल चार्ज दे देना है। नंबर 3 क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा के कलाम में गुजारना है। एक आपने स्केड्यूल बनाना है डेली बेसिस पे, कौन से वक्त में बैठकर आपने वचन को पढ़ना है। ये ना हो कि उधर कुकिंग रखी हुई है स्टोव पे और इधर बाइबल खोला हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उधर कुकिंग की तरफ ध्यान है और इधर बाइबल नहीं, ऐसे नहीं।
आप अपनी जो अटेंशन को डाइवर्ट करके ना कलाम को पढ़ें। बेशक आप एक चैप्टर पढ़ें, लेकिन वो टाइम आपने मुकर्रर करना है। यू हैव टू फिक्स दैट टाइम कि आपने कब कलाम को पढ़ना है। आई गेट दिस वेरी ब्यूटीफुल वार्म फीलिंग व्हेन आई एम अबाउट टू गो टू बेड। मॉर्निंग में तो होता ही है, लेकिन शाम के वक्त भी कई बार मुझे होता है। आई गेट दिस ब्यूटीफुल अर्जेंसी एंड दिस हंगर। जैसे नहीं, जब भूख लगती है तो दिल करता है कि जल्दी से हम किचन में जाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं। अगर ना करने का मूड हो तो टेक अवे कर लेते हैं, या फिर जल्दी से जाके खरीद लाते हैं। इसी तरह से खुदा का रूह आपके अंदर वो अर्जेंसी कलाम की डालेगा, और आपको उस वक्त रूहानी खुराक की ज़रूरत है। यू नीड दैट स्पिरिचुअल फूड एट दैट टाइम। हालेलुया। तो ये भी पहचान खुदावंद आपको देगा। तो आप एक टाइम सेट करें कब आपने कलाम पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको थॉरली पढ़ें, उसको समझे। ये ना कि किसी के साथ चर्च में कंपटीशन लगाए कि मैंने पूरे यानी कि 6 महीने में बाइबल ख़त्म कर ली। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, या 1 साल में बाइबल ख़त्म कर ली। इसको कहते हैं शेखी, बोस्ट करता है। वो शेखी का रूह है जो कहता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ या सुपीरियर हूँ क्योंकि मैंने 6 महीने में बाइबल ख़त्म कर लिया या साल में ख़त्म कर लिया। इट्स नॉट अबाउट ख़त्म करना बाइबल को, इसको जो है पहनना है। ये कपड़े हैं हमारे लिए। खुदा का कलाम में ये वस्त्र हैं। these are our garments of salvation, garments of righteousness, garments of hope, garments of glory। ये हमारे कपड़े हैं, and we need to have change। कपड़े नहीं रोज चेंज करते, ये भी रोज बदलता है हमें, ये भी हमें नवा नखोर करता है। आमीन, हालेलुया। पॉइंट टू बी नोटेड। जस्ट एज वी लाइक टू ड्रेस अप एंड लुक गुड, ताकि हमें दूसरे एडमायर करें और हमें कहें वाह फैम ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कहाँ से आपने खरीदी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। That's how the Lord wants His word to dwell in us। हमारे अंदर इस तरह से खुदा का कलाम हो, जब हमारी गुफ्तगू भी हो तो खुदा के कलाम से हो, खुदा की पहचान से हो, बाइबल से हो। इस तरह से खुदा के कलाम को सीखना है। एक टाइम दिन में मुकर्रर करना है कि आपने बाइबल पढ़ना है। इट्स नो पॉइंट सारा दिन बाइबल टेबल पे खुला पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते जाओ, और फटाक में गुस्सा आए, फटाक में गाली निकाल दी, फटाक में ये कर दिया। यू हैव नो रिलेशनशिप विद गॉड। How are you dealing with your wife? How are you dealing with your husband? आप बच्चों को कैसे उनके साथ आपका बिहेवियर है, ये सारा बाइबल में से सीखना है। ये बाइबल से सीखना है। खुदावंद का तसल्ली का शहज़ादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। वेयर इज़ आवर पीस? तो ये चीज़ें हमें खुदा का कलाम सिखाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेट अ डे एंड वी सेट टाइम। जो मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, शायद ड्यूरिंग द वीक उनको इतना टाइम ना मिले, देन मे बी सैटरडे दे कैन डिवोट एंड से राइट टुडे आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई हैव टू डू। बट मेरा मेन जो इम्पोर्टेंट है, आज मैंने बाइबल स्टडी करनी है। छोटा सा यानी बुकलेट ले ले, थोड़ा सा पैगाम तैयार करें ताकि आपको याद रहे। और फिर उसके साथ आपने जो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप सीडीज़ भी सुन सकते हैं। ग्लोरी टीवी पे मैंने बहुत सारे खूबसूरत मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं। आप अपनी गाड़ी में इस तरह से फ़ोन लगा के यूट्यूब पे जाके आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करें तो आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। अगर आपको शाउटी आवाज़ें चाहिए, कोई स्क्रीम करता हुआ प्रीचर चाहिए तो फिर आप स्क्रीमिंग प्रीचर को सुने, उसकी स्क्रीम्स को सुने। लेकिन अगर आपको एक जो कहते हैं कि जो रूहानी पैगाम चाहिए, जो आपकी रूह को मिनिस्टर करे, जो सच्चाई की तरफ आपको लेके जाए, तो आप ज़रूर खुदा के कलाम को सुने। हालेलुया, थैंक यू। नंबर 4, जब आप बाइबल में दिलचस्पी आप लेना शुरू करेंगे, जैसे मैंने अपने यंगर सन से कहा है कि स्टार्ट लिस्टिंग टू द एंड टाइम मैसेजेस बिकॉज वी आर इन द एंड टाइम, वी आर इन द लास्ट डेज। तो बहुत सारे यंग लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी उन्होंने शादियाँ नहीं की, उनके बच्चे नहीं हुए, उन्होंने अभी लाइफ का जो दूसरा पैर है अभी उसमें एंटर नहीं किया, सेकंड फेज में। तो उनको ज़रा बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, एंड टाइम है, द ग्रेट रीसेट और ये 2030 हो एजेंडा, ये सारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अभी शादी करनी है, सेटल डाउन होना है, बच्चे होने हैं। सो दे फील कि दे माइट नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स, बट लेट मी शो योर लाइफ इज़ फॉर बेटर देन दैट। तो ये है कि एंड टाइम के बारे में मैंने जैसे अपने बेटे से कहा तू पढ़ इसको, और क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जो मुखालफे मसीह या एंटी क्राइस्ट ने जो इस दुनिया को जिस तरह से रीशेप करना है, जो चीज़ें ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, डिजिटल आइडिया कह लें कि डिजिटल करेंसी की बात कर लें, और बहुत सारी बातें हैं जो रोबोटिक वॉर कह लें या स्पेस वॉर कह लें, रोबोटिक वर्ल्ड हो जाएगा। ऑल दिस थिंग्स काउंट करेंगे। तो ये बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए।
गॉस्पल के साथ साथ। तो अभी आई वाज वेरी इनकरेज्ड दैट कि बच्चे इस बात को पढ़ रहे हैं और समझना चाह रहे हैं। वी वांट टू से थैंक यू लॉर्ड कि ये वक्त हमारे पास है कि हम इस बात को पे गौर कर सकें। सो कलाम को सीरियसली लेना है और खुदा के कलाम के मुताबिक हमें इतना, जैसे रसूल जो थे खुदावंद के साथ जब माउंट ज़ायन पे गए, सैयून के पहाड़ पे वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने सवाल बहुत सारी चीज़ों से किए कंसर्निंग एंड टाइम्स कि आखिरी वक्त में क्या होगा। तो जीसस ने बहुत खुलकर गॉस्पेल्स में बताया हुआ है कि व्हाट इट विल बी लाइक इन द एंड टाइम्स। एंड व्हेन यू ड्रॉ क्लोजर टू दैट, आगे जब पढ़ेंगे कि खुदावंद ने कहा कि एक कौम दूसरी कौम पे चढ़ाई करेगी, एंड टाइम वॉर्स होंगे, रूमर्स ऑफ वॉर्स होंगे। वी आर लिविंग इन दैट टाइम, वो अब हो रहा है। तो जब आप कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन, स्टार्ट फ्रॉम बुक ऑफ मैथ्यू, ग्रेजुअली करते करते बुक ऑफ रेवलेशन व्हिच इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, उसको पढ़ें, फिर देखें कि कहाँ पे आप खड़े हैं। क्या सिर्फ आप अपना जो है मोर देन 40 आवर्स काम कर रहे हैं, सिर्फ वेज पैकेट को ही देखते हैं एवरी मंथ, या फिर आप फिक्र करते रहते हैं एवरी पेनी यू स्पेंड, आपको बुखार हो जाता है, हाय आज 10 पाउंड मेरे एक्स्ट्रा लग गए। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी, क्योंकि खुदावंद कहता है कि लुक एट द फील्ड्स, लुक एट द फील्ड, खेतों को देखो, हरियाली को देखो, उसकी क्रिएशन को देखो। खुदावंद ने हर प्रोविजन हमारे लिए की हुई है, हमारे लिए खुदावंद ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है। बट वी नीड टू हैव डीपर रिलेशनशिप विद हिम। जब आपका रिश्ता खुदावंद के साथ गहरा होगा, तब आप उसकी मर्जी को और उसके प्लान को जान पाएंगे। आमीन। इसके बाद आपने मेमोराइज करने हैं स्क्रिप्चर्स। रिसेंटली सबका टेस्ट हुआ था एक्सी चर्च में, जब प्रीचर ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सारे जने लिखें, आपको एक आयत अगर याद है तो फिक्र में सारे पढ़ गए इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड आई वाज एक्चुअली फेल्ट क्वाइट नाइस। बाद में जब मैंने देखा कि मुझे काफ़ी सारी वर्सेस आती हैं जिन्हें मैं अपनी प्रेयर में भी बोलती हूँ, जिन्हें मुझे जब ज़रूरत होती है तो कोट करती हूँ। मुझे वैसे खुशी हुई थोड़ी सी, मैंने कहा इतने सालों में चलो थोड़ा सा कलाम तो सीखा है, तो काफ़ी वर्सेस मुझे यानी कि मेमोराइज मैंने की हुई थी। और मेरा फेवरेट ज़बूर 100 तो मुझे उर्दू में मुँह ज़बानी आता है। एंड सो मेमोराइज वर्सेस, बिकॉज जब डेवल आएगा ना तो आपको जब चैलेंज करेगा, बुखारी आएगी, डिजीज़ आएंगे, हार्ट अटैक आएगी, आपको कोई दिल तोड़ेगा, तो आपको उस खुदा का कलाम तसल्ली देगा, आपको खुदा का कलाम उभारेगा, आपको बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। सो कोशिश करें कि इन वर्सेस को जो खुदा का कलाम आप पढ़ रहे हैं उनको मेमोराइज करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। आजकल मैं अपने ग्रैंडसन को साम 91 टीच कर रही हूँ, तो मेमोराइज, मम्मा आई एम गोइंग टू लर्न इट सून। तो उसके साथ मैं कहती हूँ ख्याल बाई योर फेवरेट टॉय, या मम्मी एंड डैडी उसे कहते हैं विल टेक यू टू अ सर्टेन प्लेस, आप इसको मेमोराइज करो। सो ही इज ट्राइंग टू मेमोराइज साम 91, ब्यूटीफुल साम, एनी टाइम एनीवेयर पढ़ सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, और ये सुपर एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड है जो आपकी ज़िंदगी पे जो है एकदम पूरा परफेक्ट सेट बैठेगा। सो नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, कलाम को याद करना है, वर्सेस को याद करना है। एंड व्हेन यू हैव डन दैट, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट प्रे, हालेलुया। दिल दे दिया, शुक्र करें, खुदा उनका दुआ करें, खुदा के कलाम में बैठना सीख लिया है, थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। आते जाते किसी से मिलते हैं अपनी गवाही दें, थैंक यू लॉर्ड। सो एट द एंड ये सम अप सारा होता है, खुदा की मोहब्बत इसमें है कि हम दुआ में ठहरें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को बरकत दें, क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है हमें कि हमने हर बात का खुदावंद को हिसाब देना है, हमने खुदा पे भरोसा करना है, ना कि अपनी फीलिंग्स पे। ओके, वी नॉट टू लिव बाय फीलिंग्स से आज मैं उठी हूँ तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, आज मैं उठी हूँ तो बड़ी सैड हूँ, आज तो मेरा दिल ही रोने को किया जा रहा है। Yeah, that's okay, we have these emotions and feelings, but above that is the word of God. When you feel like that कि आप पिटी पार्टी कर रहे हैं या बहुत वीपी हो रहे हैं या सैड हो रहे हैं, खुदा के कलाम को खोलें और ऊंची ऊंची बोलें अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। एंड खुदावंद को, खुदा ने ऑलरेडी फतह पाई है, कलाम बताता है he is victorious, so he has already won the battle, you don't have to do nothing। हर शक में से खुदावंद आपको निकालेगा, हर गहरे गुनाह से आपको छुड़ा सकता है वो, हर बुरी सोच और ख्याल से आपका दिमाग को अलग कर सकता है, बुरों की संगत में बैठने से आपको वो हटा सकता है, शराब की अगर लत लगी है तो उससे खुदावंद आपको छुटकारा दे सकता है, एडिक्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, किसी किस्म का भी एडिक्शन है, खुदावंद आपको छुड़ा सकता है, पोर्नोग्राफी का आपको गिफ्ट जो क्या कहते हैं एडिक्शन है, तो इससे भी निकाल सकता है और आपको अच्छा गिफ्ट दे सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आवर गॉड इज द वन दैट गिव्स गुड गिफ्ट्स।
बुरी चीज़ों से आपको छुड़ाएगा, इब्लीस के जाल से आपको जो है वो बाहर निकालेगा। सो खुदा पे जब आप भरोसा रखें, इससे आपको पता चलेगा कि आपका रिश्ता खुदा उनके साथ गहरा हो गया। आई स्पीकिंग टू समबडी जस्ट लिटिल व्हाइल अगो, 30 years they've been in the church, तो 30 years के बाद तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ना, कुछ तो खुदावंद की जो रिवायतें हैं, जो बातें हैं, जो कलाम है, कुछ तो सीखा ही होगा ना। तो अब सीखा है तो उसको इस्तेमाल में लाना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, गवाही देनी है। आमीन। सो जैसे हमने कहा कि खुदा से बातें करनी है, खुदा से यू आर गोइंग टू टॉक टू गॉड, गॉड टॉक, खुदा के साथ बात करनी है जब अपने दुआ में बैठना है, और खुदा के कलाम को पढ़ना है, और उसकी जो एक खामोशी में आपको उसकी प्रेजेंस जो मिलेगी वो सचमुच आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। एंड देन यू विल सी कि गॉड इज सो ऑसम, सो मर्सीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो बिग। और हम क्या इंसान हैं जो वो हमारे साथ आके संगत करे, जो हमें अपने पास बिठाए। सो इससे जो है खुदावंद फिर इक्विप करेगा आपको अपने पाक रूह के फलों से। He will give you the good gifts of the Holy Spirit. आपकी आदत को चेंज करेगा। And then all you need in life, जब जंग लगी हुई है, जब आप किसी हादसे में से गुजर रहे हैं, किसी परेशानी में से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद आपको जो है तसल्ली देगा, क्योंकि आपने अपना रिश्ता खुदावंद के साथ गहरा कर लिया है। तो ये थोड़ी सी बातें थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती कि आप किस तरह से अपना रिश्ता खुदावंद के साथ गहरा कर सकते हैं। How you can deepen your relationship with God, and I pray that these few things that I've shared will help you, and let's be encouraging one another। और इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, और फिर सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुदावंद से दुआ करती, खुदावंद हर एक इंसान जो आज इस वक्त भूखा है और प्यासा है, तो उससे मिलने के लिए खुदावंद तुझसे चाहता है कि वो मिले और अपने रिश्ते को तेरे साथ गहरा करे, और ख़ासतौर पे आत्मिक रिश्ता, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, खुदावंद वो रूहानी जो रिश्ता है तेरे साथ गहरा हो जाए, क्योंकि तू लोगों से प्यार करता है। तो ने कहा, यीशु ने भी कहा कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तू ही तो ज़िंदगी देता है, तू ही तो बचाता है, और तू ही हमें संभालता है। खुदावंद इस कलाम पे तेरी बरकत हो, और जितना उन्हें रिसीव किया उन्हें बड़ी ब्लेसिंग मिले, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। शालोम, जय मसीह की।